سورہ بقرہ سے ایک آیت پیش نظر ہے کیونکہ سرکار زمانہ پر میرے جملہ صرف فرقہ اسلامیہ کا ہی عقیدہ نہیں بلکہ تمام مذاہب عالم ایک نجات دہندہ کے منتظر ہیں، چاہے وہ ہندو ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، نصارہ، مجوس، جو بھی ہے، اس امید میں ہے کہ ایک نجات دہندہ آئے گا جو دنیا سے ظلم و جور کو ختم کرے گا اور عدل ہی عدل ہوگا۔ اور 73 کے 73 فرقہ اسلامیہ اس بات کے قائل ہیں کہ نسل رسول میں سے آتی ہے، وہی ٹائم زمانہ ہے، اسی کے پیچھے عیسیٰ نے نماز پڑھنی ہے۔ بس اختلاف دو باتوں پر ہے، باقی یہ کہتے ہیں کہ اس نے ابھی پیدا ہونا ہے اور ہم کہتے ہیں وہ دنیا میں موجود ہے۔ قوانین طبیعت کے خلاف ہے اتنی لمبی عمر تک زندہ رہنا، اور دوسرے رجعت سے اختلاف ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ سرکار آئیں گے تو کچھ مومن قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور کچھ منکر۔ ہر وہ مومن جو یہ حسرت لے کے دنیا سے گیا ہے کہ میں سرکار کی حکومت دیکھتا ہوں، ہر ایک کی قبر پہ سرکار کا فرشتہ نہ جائے گا، حسرت لے کے گیا تھا تیرا امام آ گیا ہے، آ جا۔ بڑے منکر بھی اٹھائے جائیں گے، چھوٹے قسم کے منکرین کا حساب قیامت میں ہوگا، بڑوں کا ظہور پر بھی ہوگا اور قیامت کے دن بھی ہوگا۔ اور قبروں سے واپس آنے کا نام ہے رجعت، اور رجعت کا صرف بڑا بیشیہ پائے گا۔ لوگ لیکن اس کو کہتے ہیں کہ جو مر گئے وہ قیامت سے پہلے واپس آئیں۔ میں آئے پڑھ رہا ہوں، قرآن و حدیث میں رجعت کے دلائل کا ایک پہاڑ کھڑا ہوا ہے۔ اب دیکھیے گا کہ رجعت قرآن میں کہاں کہاں ہے جو نماز ملتی ہے۔ رسول سے اللہ کہہ رہا ہے، سورہ بقرہ پڑھنا، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ عُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَأَمَاتَهُمُ اللَّهُ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ فرمایا رسول تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں موت کے ڈر سے گھر چھوڑ کے بھاگ نکلے۔ یہ واقعہ بنی اسرائیل کا ہے، رسول سے ہزاروں سال پہلے کا، اور اللہ کہہ رہے ہیں أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ، تم نے ان کو دیکھا نہیں، وَهُمْ عُلُوفٌ، وہ ہزاروں میں تھے، نکلے کیوں؟ خرجوا من دیارہم، اپنے گھروں سے، وَهُمْ عُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ، موت کے ڈر سے۔ اللہ کہتا ہے فَأَمَاتَهُمُ اللَّهُ، اللہ نے سب کو مار دیا، ثُمَّ أَحْيَاهُمْ، پھر سب کو زندہ کر دیا۔ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، کیونکہ اللہ لوگوں کے لیے صاحب فضل و کرم ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن ان میں کہ اکثر شکر نہیں کرتے، ناشکر ہیں۔ یہ واقعہ حزقیل نبی کے زمانے کا ہے۔ حزقیل حضرت موسیٰ کے اوصیاء میں سے تھے، شام کے لوگ تھے، یہ طاعون پھیل گیا تھا، لوگ بھلا بھرما کر گئے، 70,000 آدمی ان میں امیر تھے۔ انہیں کہا یار یہ طاعون والا شہر چھوڑو، ہم کہیں اور جا کے رہتے ہیں جہاں یہ وبا نہ ہو، ان غریبوں کو یہاں مرنے دو، کیونکہ غریبوں کو سسکنے کے لیے چھوڑا، جب اپنی طرف سے جائے امن پہ پہنچے اللہ نے سب کو مار دیا۔ لاش دفنانے والا کوئی تھا، 70 کی 70,000 لاشیں وادی میں پڑی رہی اور سالوں پڑی رہی۔ سالوں کے بعد حضرت حزقیل کا وہاں سے گزر ہوا، پہچانا یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، وہی زانوں کے بل گرے، دستے دعا بلند کیے، پروردگارا میری سن لے، انہیں زندہ کر دے تاکہ ان کی نسلیں پھیلیں، زمین میں تیری تسبیح ہو۔ اللہ نے کہا میں اپنی حجت کی سفارش کو رد کیسے کروں؟ ان میں پھر بھی اکثر ناشکرے ہوں گے، لیکن تم نے کہہ دیا تو پانی لیا، ان پر چھڑکتا جا، یہ اٹھتے جائیں گے۔ اب یہ گھروں میں جا کے سوچ نہ کروں، اللہ ویسے نہیں اٹھا سکتا تھا انہیں، یہ کیوں کہا پانی لیا چھڑکتا جا؟ بتانا یہ چاہتا ہے کہ قدرت چاہے میری ہوتی ہے، عمل میری حجت کا ہوتا ہے۔ اور کیا کہتی وہ نوروز تھا، بالکل ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اس دن نوروز تھا جب وہ سارے زندہ ہوئے۔ اسی لیے نوروز کے دن اللہ نے مومنین کا ایک دوسرے پہ گلاب اور پانی چھڑکنا سنت قرار دے دیا۔ تو اب زمانے کو بتا دینا ریاضت کر کے سالوں مرے رہے، سالوں کے بعد زندہ ہوئے، اشفاق یہی تو رجت ہے، مر کے لوٹ آنا ہی رجت ہے۔ اور قرآن رجت کا قائل ہے
तुम क्यों नहीं? और दूसरी मिसाल को देखो, मौला अमीर मिंबरों से अक्सर कहा करते थे, उसकी कुदरत के क्या ताज्जुब है कि बाप 50 साल का, बेटा 100 साल का। लोगों ने कहा मौला बाप 50 का होकर मर गया, बेटा 100 साल तक जिंदा रहा। फरमाया एक ही दिन में बाप की उम्र 50 साल थी और उसी दिन बेटा 100 साल का था। और वो तक ये हैरान हो रहे हैं। मौला ने हजरत उज़ैर की मिसाल दी है, क्योंकि हजरत उज़ैर जिस दिन घर से निकले, घर में बच्चा होने वाला था, एक बस्ती से गुजरे और नदी मरा पूरी की पूरी बस्ती बर्बाद हो चुकी थी, जलजले में छतों के बाद उल्टी हुई थी। और ये हाल जिंदा हुआ होगा, अल्लाह इनको कैसा जिंदा करेगा? कुरान कहते हो गया, पूरे 100 साल अल्लाह ने उसे मार दिया, खुद भी मर गया, साथ गधा भी मर गया। 100 साल के बाद अल्लाह ने जिंदा किया। पर कितना सोए होगा दिन को देखा, पूरा दिन या दिन का कुछ हिस्सा सो रहा हो। अल्लाह ने कहा 100 साल सोए हो, अब मैं अपने कंधे की तरफ देखो कि मैं जिंदा कैसे करता हूँ। अब चूंकि ये 100 साल मरा रहा, इसकी जिंदगी रुक गई। उसी दिन घर में बच्चा पैदा हुआ, वो 100 साल का हो चुका था। जब घर गए बाप 50 साल का, बेटा 100 साल का। 100 साल उज़ैर मरा रहा, फिर लौटा, यही रजत है। हज़रत मूसा मीकात पे जिन 70 आदमियों को ले गए, 7 लाख बता था, 7 लाख में से 70,000 चुने, 70,000 में से 7,000 चुने, 7,000 में से 700 चुने, फिर 70 चुना। और यही तुम्हारा 12वां इमाम अपनी पौकड़ी में लिख रहा है कि इन्ना मूसा मां कमाल अक्ल ही वमरूर इल्म ही, कि मूसा गाफिर इल्म रखने के बावजूद, कमाल अक्ल रखने के बावजूद जिन्हें मूसा ने चुना, वो दूर पे जाके मूसा से कह बैठे जब तक अल्लाह नजर ना आए हम ईमान नहीं लाते। और आज जब मूसा का चुना हुआ नाकिस है, तुम मर्जी से इमाम चुन सकते हो। बस इन्होंने सवाल क्या था, तो तकरीबन हुआ क्या है 70 आदमियों से क्यों क्या हुआ? शाय का इलाज दिला, तशद्दी में बसम कर दिया, खाकिस्तर हो गए, मूसा बेहोश हो गया। जब होश में आया देखा उनकी तो आंख पड़ी है, आप परवरदिगार या तो मुझे भी मार दिया होता। 70 चुन के आया हूं, अगर अकेला गया कौन तो कहेगी कि तूने हमसे झूठ बोला था कि अल्लाह मुझसे वादे करता है। जब हमने 70 बंदे गवाही के लिए भेजे, तूने सबको कत्ल कर दिया ताकि तेरे झूठ का गवाह कोई न रहे। पढ़ने वाले मैं तो मुंह दिखाने जोगा नहीं रहा, मेहरबानी कर इन्हें वापस भेज। और अल्लाह बनी इसराइल पर कुरान में एहसान लगाते हुए कह रहा है, पढ़े ना सूरह आला, सुन्ना बासनाकुम मिन बाद मौतिकुम, हमने तुम्हें मौत देने के बाद दोबारा मबूस नहीं किया। जब वो 70 लौट के बनी इसराइल में आए, लोग मूसा के हाथ चूमते हैं और वो 70 कहते हैं ठीक है इमाम रखो मूसा पे, लेकिन हमने मूसा से अजीम लोग वहां में कह करके जाने में आबादी में पता हम जमीन आने में कहते राय ना मेमोरी के रब ना मेरा नाम से बड़ा खुशी है बता राय ना फी बला अनफज आमरन बला आजम सुल्तान ने मोहम्मद अली कहा हमारी रूह ने अर्श देखा, खुशी देखी, यौम तरफ देखा, अल्लाह के मुल्क देखे, कहा मोहम्मद अली से बड़ा हुक्मरान हमने या तो किसी का हुक्म वहां ज्यादा चलता है इन दोनों से, इनसे बड़ा सुल्तान वहां कोई नहीं। 3 मिसालें 70,000 बंदों की, हजरत उज़ैर की, और ये 70 बंदे हजरत मूसा वाले। मौत के बाद जिंदा होना ही रजत होती है। चौथी मिसाल कुरान में देख लो, हजरत इब्राहिम पूछ रहे हैं रब्बे आरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता। मुझे ऐसा लगता है जैसे रेडियो का वो गत्ता नहीं फट जाता और आवाज आती है, वैसी आवाज आ रही है, और पहले दिन से मुझे ऐसी आ रही है। रब्बे आरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता, पालने वाले मुझे दिखा तू मुर्दों को कैसा जिंदा करता है। और अवलम तो कहा ईमान नहीं है, हाँ ईमान तो है, वलाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी, इत्मीनान क़ल्ब चाहता हूं। क़ाल फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिन अत-तैर फसुरहुन्ना इलैक सुम्मा अजअल अला कुल्लि जबलिन मिनहुन्ना जुज़अन सुम्मा अदउहुन्ना यातीनका साया। हजरत इब्राहिम से ताल्लुक रखने वाली 2 आयतें हैं, उनके बारे में लोगों को अगर पता चल जाए कि इसमें असरार क्या है और तरीका जान लें तो पता नहीं कर क्या लें। उनमें एक ये है, अल्लाह ने कहा 4 परिंदे पकड़ ले, उन्हें ज़िबा कर, उनका कीमा कर, उनका गोश्त एक दूसरे में मिला दे,
सुम्मा जअला कुल्ल जबलन मिनहुन्ना जुज़अन, एक एक जुज़ एक एक पहाड़ पे रख दे। सुम्मा दुहुन्ना यातिनका साया, फिर उन्हें बुला, दौड़ते हुए तेरी खिदमत में चले आएंगे। यही तो रजत है। ज़िबा हो गए, मर गए, कीमा हो गया, रेशों में रेशे मिल गए, फिर जिंदा हो गए। कुरान में नहीं पढ़ा कि लोग अल्लाह से कहेंगे रब्बना तमत्तना इसरतैन व अहयैतना नसरतैन, पाने वाले तूने हमें 2 दफा मौत दी, 2 दफा जिंदगी दी। अगर तुम्हारा अकीदा रखा जाए तो फिर एक दफा आप मरोगे, फिर कयामत को उठोगे। ये एक दूसरी मौत कहां से आई है? ये दूसरी जिंदगी कहां से आई है? यही तो मेरे इमाम ज़माना की दी हुई है कि मौत भी हजरत इब्राहिम को मौत और हयात के इत्मीनान की बात ही नहीं है। इसलिए तो मैं कहता हूं कुरान मौलवियों से पूछना ही नहीं चाहिए, चाहे वो हमारे हों या पराए हों। हमें क्या पता कुरान क्या कहता है? यही सवाल सादिक आले मोहम्मद से एक बंदे ने किया, कहा मौला वो ईमान कैसा है जिसमें इत्मीनान नहीं? और अल्लाह का खलील कह रहा है लियत्मइन्ना क़ल्बी, इत्मीनान चाहता हूं। फरमाया मौत और हयात का इत्मीनान ही नहीं। बातों बातों में अल्लाह ने इब्राहिम से कहा इन्नी लअत्तखिज़ु मिन इबादी खलीला, मैं अनकरीब अपने बंदों में से एक खलील बनाने वाला हूं। काला मन होगा, पालने वाले वो कौन है? कहा इन काल अली ला अहयतु लहुल मौता, अगर उसने मुझसे कह दिया कि मुर्दे जिंदा कर, तो मैं अपने खलील के कहने से मुर्दे जिंदा कर दूंगा। मौला फरमाते फौरन इब्राहिम ने सवाल कर दिया, पालने वाले मुझे दिखा तू मुर्दों को कैसा जिंदा करता है? अल्लाह ने कहा ईमान नहीं है। कहा उस बात पर ईमान है वलाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी अलल खुल्लत, खुल्लत पर इत्मीनान चाहता हूं कि खलील मैं हूं या कोई और है। रब्बना अमरता नसरतैन व अहयैतना नसरतैन, पालने वाले तूने 2 दफा मौत दी, 2 दफा जिंदगी, यही तो रजत है। एक दफा कायम, दोबारा जिंदगी देगा, दोबारा मौत देगा। कुरान की तो शायद आदमी एक आयत भी काफी होती है। मैंने 5 मिसालें दे दी, 5 को मानने वालों के लिए 5 दलीलें काफी हैं कुरान की। रह गई ये बात कि इतनी लंबी जिंदगी कवानीन तबीयत के खिलाफ है। हैरत होती है। इस पर भी 5 मिसालें पहले हैं, 4 अल्लाह के दोस्तों की, 1 अल्लाह के दुश्मन की। मेरे इमाम को तो अभी 1200 साल भी पूरे नहीं हुए, शैतान हजारों सालों से जिंदा है। अब भाई मेरे पास ये मेरी समझ में नहीं आता, शैतान की जिंदगी पर ताज्जुब नहीं है, हुज्जत की जिंदगी पर ताज्जुब है। और 4 मिसालें औलियाए खुदा में। मेरे मौला के 4 वजीर देख लो, 2 जमीन के वजीर, 2 आसमान के, इदरीस और ईसा भी जिंदा, और मौला से पहले के जिंदा, खिजर और इलियास भी जिंदा, और पहले से जिंदा। एक इल्मी लतीफा है, बताता चलूं, जो इल्मी जवाहिर से दिलचस्पी रखते हैं उनकी दिलचस्पी के लिए बताने लगा हूं। 2 वजीर मौला के जमीन पर हैं, 2 आसमान पर हैं। एक जमीनी वजीर कुंवारा है मौला का अभी तक, और एक आसमानी वजीर अभी तक कुंवारा है। जमीनी वजीरों में से हजरत खिजर की आज तक शादी नहीं हुई, और आसमानी वजीरों में हजरत ईसा की आज तक शादी नहीं हुई। दोनों अलिफ वाले शादीशुदा हैं। आसमानी इदरीस की भी शादी है, जमीनी इलियास की भी शादी है, और ये दोनों सुन्नतें छोड़ी गई हैं हमारे लिए कि जो इंतजार इमाम में कुंवारा रहे वो खिजर और ईसा की मिसाल दे, जो शादी करे वो इदरीस और इलियास की मिसाल दे। कायम ज़माना के रैयत के लिए लुत्फ व करम है। मेरे ख्याल तकरीबन हर अशरे में मौला के वज़रा पर भी बात होती है। ये वज़रा वाली मजालिस अलग निकाल लो तो फिर एक ज़ख़ीम किताब बन जाएगी। हजरत रिसालत बाप, तुम्हारे रसूल की मेराज के सफर 2 किस्म के हैं, एक यूं एक यूं। जो यूं है वो फलस्तीन तक है, जो यूं है वो अदना तक है। यूं वाला सफर जारी था कि अचानक जनाब रिसालत बाप को फजा में खुशबू आई। कर्राओ है अतिल मिस्क, ये लफ्ज़ है, जैसे मुश्क की खुशबू आती है। होने को होने से पहले जानने वाला रसूल हम पे इल्मों का इल्म बढ़ाने के लिए पूछा, जिब्रील माहाज़िर राहत तय्यबा, ये तय्यब खुशबू कहां से आ रही है? उसने कहा या रसूल अल्लाह फी बैत कौमिन उज़्ज़बू फी हुब्बिल्लाह, फरमाया कुछ लोग थे जिन्हें अल्लाह की मोहब्बत में अजाब दिया गया, उनके घर से आ रही है। जिब्रील वो कैसे? अब रसूल अगर सवाल न करते बात हम तक कैसे पहुंचती? थे जिब्रील की विलादत से भी पहले। फरमाया वो कैसे? अल्लाह की मोहब्बत में अजाब दिया गया।
सरकार इस सल्तनत का एक बादशाह था, बादशाह काफिर था, उसका बेटा था, वो न सिर्फ मुस्लिम था बल्कि इल्म इलाही में हुज्जत था जिसका नाम खिजर था। सरकार बाप ने उसका नाम दो रिवायतें हैं, या बिलिया रखा या तालिया रखा। खिजर इसलिए कि जिस खुश्क लकड़ी पे बैठता था उस लकड़ी पे सब्जा उगाता था, जिस चिट्रियल जमीन पे बैठता था वहां ज़राअत उगाती थी, क्योंकि सब्जा उगा देता था लकब खिजर हो गया। बाप से छुप के इबादत करता था, बादशाह था। वजीरों ने मशहूरों ने कहा एक ही तेरा बेटा है, इसकी शादी कर ताकि तेरी नस्ल फैले। बादशाह ने शेख शहजादी पसंद की, शादी कर दी। शब उरूसी खिजर ने उसे बुलाया और कहने लगा ला हाजत अली फिन निसा, मुझे औरतों की कोई हाजत नहीं। अगर वजीर, देखो हमारी दुनिया में तो चल जाता है कि वजीर का इल्म ज्यादा हो, अमीर का थोड़ा हो, लेकिन अल्लाह के यहां ऐसा नहीं होता। वहां अमीर अल्लाह बनाता ही उसी को है जो हर जिहत में हर सिफत में वजीर से बड़ा हो। वो जिसका वजीर औरतों से बेनियाज है वो खुद तेरे मेरे तरीके से ला हाजत अली फिन निसा, मुझे औरतों की कोई हाजत नहीं। अगर तू मेरा राज रख सके कि मेरे वालिदैन को यह न पता है तो तेरी जन्नत की जमानत लेता हूं। उसने कहा राज रखा जाएगा। उस मोमना ने खिजर का राज इफ्शा न किया। वक्त गुजरा, फिर वजीर मशहूर ने कहा औलाद नहीं हो रही, कहीं ये बहू बांझ तो नहीं, और शादी कर। बादशाह ने एक की जगह दो कर दी इकट्ठी, और उनसे भी हजरत खिजर ने यही कहा। उन्होंने सुबह उठते ही बादशाह से कह दिया कैसे तेरी नस्ल फैले, तेरे बेटे ने तो फितरत की कोई हाजत और ख्वाहिश ही नहीं। बादशाह को गुस्सा आया, हुक्म दिया कि जैसे हुजरे में यह रहता है पता नहीं छुप के क्या करता रहता है, उसके आगे दीवार चुन दो ताकि दब के मर जाए। बस दरवाजे का बंद होना था, फौरन जिब्रील नाज़िल हुआ। कहता है अल्लाह ने आए रसूल मुझे भेजा कि जाके खिजर से कहे आज के बाद तुझे कुव्वत है, तू दीवारों से ऐसे गुजर जाएगा जैसे हवा गुजर जाती है। जैसे हवा मुट्ठी में बंद नहीं हो सकती, तुझे दीवारें चाहे वो फौलाद की हो नहीं रोक सकती। और आज के बाद तू जो सूरत चाहेगा वो बना लेगा। कहते कुछ दिन के बाद बाप का दिल था, ख्याल आया कि क्या गुजर रही होगी मेरे बेटे के साथ, मरा या जिंदा है। दरवाजा खोला तो खिजर गायब। जिब्रील सुना रहा है रसूल को कि खिजर वहां से अपनी खालाजाद सिकंदर जुल्करनैन के पास चला आया। जुल्करनैन ने उसे अपने लश्कर का सालार बना दिया। जुल्करनैन ने सुन रखा था कि दुनिया में 700 चश्मे आबे हयात के हैं, वो उनकी जस्तजू में था। उसने 700 दस्ते फौज के बनाए, 700 मछलियां दी, एक एक को एक एक मछली दस्ते की कि जिस जिस चश्मे से गुजरो इन मुर्दा मछलियों को धोते जाना। जिस चश्मे में मुर्दा मछली जिंदा हो जाए समझ लेना वो आबे हयात है। 700 दस्ता फैल गया। खिजर अचानक एक चश्मे से गुजरा, उसने मछली को धोया, मछली हाथ से छूट के तड़प के पानी की लहर पर रवा दवा। खिजर मछली पकड़ने के लिए जल्दी से उसने छलांग लगा दी चश्मे में, नहा भी लिया, प्यासा था पी भी लिया। मछली तो हाथ आई नहीं, खिजर खाली हाथ आ गया। आके अपने खालाजाद से बताया कि मछली तो छूट गई ऐसे जिंदा होके। सिकंदर ने कहा तूने उस चश्मे से पिया, पी लिया। कहा लिहाजा खुलिकता, फिर तेरी ही तखलीक उस चश्मे के लिए है, मेरी नहीं है। अब तुझे नफ़्ख़े सूर से पहले, सूर फूंकने से पहले मौत नहीं आएगी। होने को होने से पहले जानने वाला रसूल पूछा है जिब्रील आखिर जो जस्तजू में था जुल्करनैन को न मिला, खिजर के हिस्से में क्यों आ गया? रसूल के रकाब चूम के कहता है क्योंकि इल्म इलाही में ये खिजर तेरे 12वें नायब का वजीर था। रसूल फरमाते हैं जिब्रील वो घर वाली बात तो अभी बताई नहीं तूने, तो घर से खुशबू क्यों आ रही है? सरकार उसी तरफ आ रहा हो। बस खिजर कभी जुल्करनैन के साथ रहता, कभी इबादत करने के लिए किसी जजीरे में, कभी किसी जजीरे में। खिजर के मुल्क के 2 ताजिर समंदर में कश्ती पे सफर कर रहे थे। समंदर में तूफान आ गया, कश्ती टुकड़े हो गई। 2 टुकड़ों पे तैरते हुए 2 ताजिर एक जजीरे से जा लगे। वहां खिजर इबादत कर रहा था। खिजर ने उन्हें पहचान लिया, ओए तुम फुला नहीं, तुम फुला नहीं। हाँ घर जाना चाहते हो? जाना चाहते हैं। अगर वादा करो कि मेरे बाप को मेरी जगह नहीं बताओगे तो तुम्हें अभी घर पहुंचाता हूं। वादा करते नहीं बताएंगे। फरमाया एक बादल गुजर रहा था, खिजर ने इशारे से बादल को बुलाया, ये तो मेरे मेहमान है, इन्हें घर ले जा। जी शादबाज शादबाज, हाँ यही सोच रहा है, ये वजीर है और जमीनी वजीर है और छोटा वजीर है। अल्लाह जाने अमीर क्या होगा, सरदार क्या होगा। कहा बादल ने पहुंचा दिया।
एक ने तो राज रखा, दूसरा सवेरे पहुंच गया बादशाह के दरबार में, मैंने तेरे बेटे खिदर को देखा है फलां जजीरे में, कोई गवाह, मेरे साथ फलां ताजिर भी था, उसे बुलाया, तूने देखा? उसने कहा बादशाह मैंने तो नहीं देखा। उसने कहा जी मेरे साथ बंदे भेजो, मैं जगह दिखाता हूं। बादशाह ने उस ताजिर को कैद कर दिया, फौज भेजी, फौज खाली हाथ आ गई कि जी वहां तो निशान ही नहीं है खिदर का। बादशाह ने उस ताजिर को छोड़ दिया, कहा अल्लाह को जलाल आया, अल्लाह ने पूरा मुल्क गर्क कर दिया। एक वो ताजिर बचा जिसने राज रखा था, और एक वो मोमना बची जो पहले खिदर के घर आई। उन दोनों ने आपस में अक्द किया, वहां से हिजरत करके दूसरे बादशाह की हुकूमत में चले आए। वो जो मोमना थी उसने बादशाह के घर में नौकरी कर दी, शहजादी की। शहजादी को कंघी कर रही थी, अचानक उसके हाथ से कंघी छूटी, उसके मुंह से निकला ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। शहजादी ने पूछा ये माता बोली ना, क्या कह रही है? आपने रब का नाम ले रही हूं। शहजादी ने कहा हल्ला के रब्बन गैर अभी, क्या मेरे बाप के सिवा भी तेरा कोई रब है? शहजादी कह रही है मेरे बाप के सिवा भी कोई तेरा रब है? उसने कहा अय्या तो हल जाहिला ली रब्बन हुवा रब्बी व रब्बो के व रब्बो अभी के, क्या जाहिल औरत, जो मेरा रब है वो तेरा भी रब है, तेरे बाप का भी रब है। उसने जाके अपने बाप को बता दिया कि ये तुझे रब नहीं मानती। बादशाह हुस्न लाल बबू का होकर आ गया, तू किसी और का रब मानती है? कहा जो है उसको मानती हूं। और कौन कौन इस अकीदे में शामिल है? कहा मैं, मेरा शौहर, मेरे 2 बच्चे। बादशाह ने उन्हें घर में बुला के एक बहुत बड़े कढ़ा में तेल उबलवा के जिंदा उसमें फेंकवा दिया, जल गए। जिब्रील कहते सरकार चूंकि मोहब्बत इलाही में जले, कयामत तक इस घर से खुशबू आती रहे। अब ये फैसला शायद काज़मी मेरे सामने न करना है, ये वजीर है मौला के, उल्फत ये गैर खानदान के हैं, चाहे खजर है, चाहे इलियास है, चाहे ईसा है, चाहे इदरीस है। क्योंकि मैंने लियाकत खुदा की कसम हजरत ईसा के ये लफ्ज़ पढ़े हैं, जब रात को जिंदान में थे ना कि सुबह सलीब दी जाएगी, फांसी पे चढ़ाया जाएगा, तो उस वक्त गिड़गिड़ा के जो सजदे में ईसा ने दुआ मांगी थी वो यही कही थी, पालने वाले क्या मैं तेरी कनीज की कनीज का बेटा नहीं हूं? तो कनीज जादों को तो लारता मिल रही है। हवाला मैं देता हूं, किताब का नाम है मुंतखबुल बसायर, अल्लामा हसन बिन सुलेमान हिल्ली रिज़वानुल्लाह अलैहि ने लिखी है कि शब आशूर हुसैन ने जो खुतबा दिया उसमें अपने असहाब से कहा घबराओ नहीं, कल हम शहीद हो रहे हैं, जब हमारा कायम आएगा मैं भी लौटूंगा, तुम भी लौटोगे। तो जब 72 के 72 करबला के शहीद लौटेंगे तो मैं इंसाफ चाहता हूं भाई जब अब्बास अपने सामईन से, जो ईसा को वज़ारत दे रहा है, करबला के शहीदों में एक अली है, एक मोहम्मद है। भाई अब्बास सानी अली है, अकबर सानी रसूल है। अगर कायम जमाना इन्हें ईसा की मोहब्बती में दे, तौहीन अली है, तौहीन रसूल है, मानना पड़ेगा ये इन पर भी हाकिम होंगे। जिसके अलमदार का नाम जिब्रील है, जिब्रील तेरे इमाम का अलम हाथ में लेके उठेगा, आगे आगे चलेगा ताकि जमाने को पता चल जाए अलम बिदअत होता तो जिब्रील। अल्लामा कज़वीनी उन्होंने चश्मे तसव्वुर से मंजर देखा, क्योंकि शहजाद अली अकबर को बसारत से तो किसी ने नहीं देखा। ये तो उलमा खुतबा वाइज़ीन बयान कर देते हैं, लेकिन इसके पीछे भाई मेरी बात जो इल्लत है वो शायद काज़मी हर आलिम की समझ में भी नहीं आई। उकाब तुम्हारे रसूल की सवारी का घोड़ा था, और याद पर इसे यमन के बादशाह सैफ बिन ज़ी यज़न ने जनाब अब्दुल मुत्तलिब के हवाले किया था, रसूल के दुनिया में आने से भी पहले। क्योंकि जो ही यमन के दरबार में जनाब अब्दुल मुत्तलिब का दाखिला हुआ, सैफ बिन ज़ी यज़न तख्त पे खड़ा हो गया। सरकार का तो बादशाह है, मेरे लिए क्यों खड़ा हुआ है? क्या सरकार मैं आपके लिए खड़ा नहीं हुआ, उस नूर के लिए जो आपके जबीन मुबीन में महल के एक कमरे में ले गया अकेले, तेरी पेशानी में जो नूर है तेरे बेटे को मुंतकिल होगा, तेरे बेटे से फिर आगे मुंतकिल होगा और वही आखिरी रसूल होगा, मैं नहीं रहूंगा। ये तोहफे, ये जवाहरात, ये कनीजें और ये उकाब नामी घोड़ा मेरी तरफ से सलाम देना, कहना तेरा कलमा पढ़ के जा रहा हूं और ये तोहफे कबूल कर। उस वक्त इस घोड़े की उम्र 5 साल थी। जनाब अब्दुल मुत्तलिब को शरसा जिंदा रहे, फिर जनाब अब्दुल्ला आए वो जिंदा रहे, फिर 63 बरस तेरा रसूल जिंदा रहा,
50 برس رسول کے بعد واقعہ کربلا ہوا اور اکبر میدان کربلا میں اسی عقاب پہ سوار تھا. علم طبیعیات اور مابعد طبیعیات حیران ہے کہ سینکڑوں برس یہ گھوڑا زندہ کیسے رہا. میں یہی کہتا ہوں کہ نمک حرام ہو جن کے گھوڑے سمجھ میں نہ آئے مالک جملہ میں تمہیں سنا تو پہلے چکا ہوں لیکن اب سامنے آ گیا ہے. جو نئے ہیں ان کا بھلا ہو جائے گا اور جنہیں سنا چکا ہوں وہ قند مقرر کا مزہ لے. میں نے باقاعدہ تمہیں اس گھوڑے کا شجرہ بھی بتایا تھا. ساتھ پوچھتے ہیں سرکش سے سرکش گھوڑا شاید کا آدمی جو کسی سوار کو نہ اٹھا رہا ہو اس کا دایاں کان پکڑ کے یہی شجرہ پڑھ کے پھونک دو بھیڑ ہو جائے گا. اور میں خود کئی دفعہ بدل لیا کر وفدہ میں تجربہ کر چکا ہوں. عقاب کے باپ کا نام ایزوب، ایزوب کے باپ کا نام قابل، قابل کے باپ کا نام ذات القفا، ذات القفا کے باپ کا نام خنج، خنج کے باپ کا نام میمون، میمون کے باپ کا نام ریح. ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں شجرے بھی ہیں خاندان بھی ہے اور کتابوں میں نے پڑھا ہے کہ یہ گھوڑا نہ کسی گھوڑی کے شکم میں رہا ہے نہ کسی گھوڑے کی سلب میں رہا ہے. قال اللہ لہ کن فیکون، اللہ نے اسے کہا ہو جا، کن ہو جا، ہو گیا. اور جن کے گھوڑے کون سے ہوتے ہیں سردار تیری طرف تمہیں خود جناب امین فرما رہے ہیں لا نالد ولا نولد فی البطون، نہ ہم شکموں سے پیدا ہوئے ہیں نہ کوئی ہم سے شکموں میں پیدا ہوا. سلمان نے سوال کیا تھا تیرے مولا یہ چکر کیا ہے؟ کبھی آپ بچے، کبھی لڑکے، کبھی نوجوان، کبھی جوان، کبھی ادھیڑ عمر، کبھی بوڑھے. فرمایا سلمان اگر ہم ہمیشہ ایک حالت میں رہتے اسے خدا کون کہتا ہے؟ فرمایا ہم اس کی خدائی منوانے آئے ہیں، اپنے آپ کو خدا منوانے نہیں آئے. ہاں تو رسول خدا نے اس گھوڑے پہ سواری کی. رسول کی رحلت کے بعد اس گھوڑے نے کسی کو نہیں اٹھایا. ہمیں ادمانہ دوبارہ سے کہہ رہا ہوں حتیٰ کہ خیبر شکن کو نہیں اٹھایا. علی چاہتے تو سر ولایت سے جو تقریر کی باتیں موڑ سکتا ہو وہ آپ کی کیا حقیقت ہے، لیکن علی نے جبر نہیں کیا اس پر. مولانا کہا خلو ہو، چھوڑ دو اسے اپنی حالت میں، یہ کسی کا منتظر ہے. کیا کہا میرے شہنشاہ نے؟ یہ کسی کا. اب یہاں غلط فہمی لگی ہے علماء کو. 5 سال کی عمر میں شہزادہ علی اکبر نے اس پہ سواری کی. لکھنے والوں نے بھی لکھ ڈالا، پڑھنے والوں نے بھی بے سوچے بھائی یہ بجواز پڑھ دیا. بھائی چونکہ ہم شکل پیغمبر تھا گھوڑے نے سمجھا محمد ہے. یار عقل کے ناخن لو، کہاں 63 سال کا رسول، کہاں 5 سال کا اکبر. نہ قد ملتا ہے، نہ قامت ملتی ہے، نہ جسامت ملتی ہے، سوائے اس کے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی. جو خوشبو حقیقت محمدیہ سے حکام کو آتی تھی وہی علی اکبر سے آئی. اور ان پر میں دوسری دلیل دے رہا ہوں. میرے قبلہ کو جو سننے والے اگر کوئی بیٹھے ہیں جنہوں نے انہیں سنا ہو، وہ ایک جملہ اکثر فرمایا کرتے تھے جب وجد میں آتے تھے نا تو فرماتے تھے کہ زمین ٹلے، زمان ٹلے، امیر محمد کی بات کبھی نہ ٹلے. تو میں بھی کہنے لگا ہوں، دلیل میں وہ دینے لگا ہوں، زمین ٹلے، زمان ٹلے، میری دلیل اپنی جگہ سے سینٹی میٹر بھی نہ ہلے. حقیقت محمدیہ نہ ہوتا سنتا علی نے زندگی میں 2 ہستیوں کو لبیک کہا، یا حج پہ اللہ کو یا آگے پیچھے محمد مصطفیٰ کو. کیا تلبیہ علی نے جب پڑھا لبیک اللہ لبیک لا شریک لک لبیک، یا علی نے لبیک کہا خدا کو، یا جب کبھی رسول نے کہا یا علی، آگے علی نے کہا لبیک یا رسول اللہ. میں پوری جائیداد لکھ کر دے دوں گا نہ دوں گا، میرے نقطے میں شک دکھائے کسی اور کو علی نے لبیک کہا ہو، کسی امام کو کہا ہو، کسی ولی کو کہا ہو، کسی اور نبی کو کہا ہو. نہیں کہا، سر اٹھا. میدان کربلا میں ہر شہید نے علی کو آوازیں دی ہے، حتیٰ کہ نادی علی عباس جیسے جری نے بھی پڑھی تھی. میدان میں نادی علی عباس نے بھی پڑھی. لیکن یہ علی اکبر کے بارے میں نے پڑھا کہ جب ہجوم میں گھوڑا گھسا کے حملہ کرتے تھے کہتے تھے یا علی، آواز آتی تھی لبیک حالانکہ سرکار وفا افضل ہے شہزادہ علی اکبر سے، ہر لحاظ سے افضل ہے. رشتے میں بھی افضل ہیں، حقیقت میں بھی افضل ہیں، کمال میں بھی افضل ہیں، کنہ اور ماہیت میں بھی افضل ہیں.
لیکن عباس کے لیے لبیک کی آواز نہیں آئی تو ماننا پڑے گا طوطا سمجھ کے لبیک نہیں کہا، محمد سمجھ کے لبیک۔ اور وہ علی جو گھر سے نکلے تقدیر رکابے چومے، موت کو تھرپری چھوٹ جائے، کارکنان قضا و قدر پوچھے کہ جانا کدھر ہے، جس اکبر کو علی لبیک کہے تقدیر کی کیا مجال ہے۔ دو دفعہ ڈاکٹر عرب کی غربت نکلی ہے، ایک جنگ خیبر کے بعد، ایک علی اکبر کی آمد کے بعد۔ حسین نے حجاز کی سرزمین پہ کوئی غریب رہنے نہیں دیا، سب کو غنی بنا دیا علی اکبر کی آمد کے صدقے میں۔ اور جب حسین کے چہرے پہ خوشی ہوگی، اس خوشی کے صدقے میں خدا کتنا خوش ہوگا، کیونکہ حسین کی خوشی میں ہی سب کی خوشی چھپی ہوئی ہے۔ تو پھر خدا کو مبارک دینا، ہاں اس طرح کہ تو خود مبارک ہے، تیرا نام مبارک ہے، تجھے بھی شبیہ پیغمبر کی آمد میں مبارک ہو، اور اس کی خوشی میں جو دے سکتا ہے ہماری جھولی میں ڈال۔ خاک پاپوش علی چاک غضب فر ہو جائے، ورنہ رہ جائے گی بس مجمع پرانی